Okay, a very good morning to everyone. Welcome back to Chemistry Lab. Yes, Bhavya, this is lab, our school's lab. Excited? Chalo, that's great. Good. Okay, students, let us start. We were doing acids and bases. We reached to indicators. है ना? Two indicators I'll be showing you today. That's why we are here in the lab. What are indicators? What are indicators? As I had told you earlier, they are special substances which give different color in different mediums. एसिडिक और बेसिक में ये डिफरेंट कलर्स देते हैं. So they are used to test whether the solution is acidic or basic. Right? Indicators, they are of two types that we did. There are natural indicators, there are man-made or synthetic indicators, right? और man-made indicators. तो स्टूडेंट्स नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज that are obtained from natural things, plants और animals, right? और सिंथेटिक और ह्यूमन मेड में आते हैं फिनॉल पैथिलीन जो आपके सिलेबस में है, फिनॉल पैथिलीन and methyl orange. These are in your syllabus, right? Suhana, please take the screenshot after 15 minutes. Okay, let us start with. सबसे पहले, before starting, let me show you acids and bases. This is a base. Can you see? Here word dilute is written, D-I-L. I told you na, dilute and concentrated are always written. Okay. Phenol phenolphthalein is written, Bhavya. Phenol Phenolphthalein. Right. Next. This was base that I show you. NaOH. You can see. Right. Then comes acid. This is sulfuric acid. H2SO4. Again dilute is written. Okay. So you are clear about acid and bases. We are going to use dilute acids and dilute bases. Okay, students? Is it clear to all? Okay. Now, first is litmus solution. बच्चे litmus में मैंने आपको red litmus solution बताया था. This is red litmus solution and this is blue litmus solution. You can see. You can see the solutions. Yes, धर्मजीत, एसिड की स्मेल जो है हमें स्मेल से ही पता चल जाता है इट इज एसिड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और फ्यूम्स बड़ी होती है. सो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन दिखाती हूँ. लिटमस सॉल्यूशंस के साथ हमारे पास लिटमस पेपर्स भी हैं. दिस इज ब्लू लिटमस पेपर दैट आई शो यू. ब्लू लिटमस पेपर and this is, you can say, red litmus paper. Is this clear? Red litmus paper. So पहले हम solutions के साथ करते हैं. So here what I am going to do, this is my test tube. It is empty. First of all, I am taking blue litmus solution. Blue litmus solution. This is blue litmus solution. Now I am adding in blue litmus solution. I am going to add first of all a acid. This is acid. Blue litmus solution में I am going to add acid. It changes to red color immediately.
चलो, रिएक्शन हैपन। तो हमने क्या किया, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में एसिड डाला, इट चेंजेस टू रेड कलर। अब ब्लू लिटमस सोल्यूशन में दोबारा से ब्लू लिटमस सोल्यूशन ले रही हूं दूसरी टेस्ट ट्यूब में। ये देखिए, दिस इज ब्लू लिटमस सोल्यूशन in another test tube, and now I am going to add base in it. ये base डाला मैं, what happened, no particular reaction, जैसा का वैसा ही है, right? Now I am taking red litmus solution, red litmus solution, here I am taking red litmus, इसमें मैं base डालती हूं, dilute NaOH, look it changes to blue color, it changes to blue, clear? Then सेम अगर ब्लू लिटमस में मैं एसिड डालती हूं, दिस इज ब्लू लिटमस, आई एम एडिंग एसिड टू इट, लुक इट डज नॉट गिव एनी कलर, सेम कलर इट रिमेन्स, राइट? सो दीज वर द रिएक्शंस विद solutions, litmus solutions, right? Now I am going to show you reactions with litmus paper. Bhavya, in the end I will be taking the questions better. Let me complete first, or you can type, because there are so many solutions I have kept with myself. So first of all, I am going to take this red litmus paper. You can see this is red litmus paper. Can you see? This is red litmus paper. So what happen is, red litmus paper पे हम क्या डालते हैं? We are going to add base. मैं पेपर के ऊपर ऐसे ही बेस डालती हूँ, एक ड्रॉप I have added. Look, the color has changed to blue. इधर डालती हूँ आपके सामने, ये देखिए, the color has changed to blue. So red litmus paper, on adding base it changes to blue color. क्लियर? अब मैं इसी रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डाल के दिखाती हूँ आपको. दिस इज एसिड, ये बेस हमने कर रखा है ब्लू, दिस इज एसिड आई एम पोरिंग, ये देखिए, देयर इज नो रिएक्शन, आई एम एडिंग एसिड, नो रिएक्शन, right? No reaction. Now I am taking blue litmus, here it is blue litmus, can you see blue litmus paper, right? Blue litmus paper. Now I am going to add in front of you a acid. See, see, just a drop, huh, just a drop, and you can see it changes to red. यहाँ पे करके दिखाती हूँ, एक और ले लेते हैं. This is a blue litmus paper. I am adding, see, this is H2SO4 add किया मैंने. It changes to red, right? So these are the indicators. क्या है ये? Indicators. Why they are used to test whether the substance or solution is acidic or
बेसिक। आर यू क्लियर विद लिटमस? हो गया। टर्मरिक के आपको बता चुके हैं हम कैसे करते हैं। हल्दी लगा कोई भी कपड़ा ले लो, एक पेस्ट बना लो टर्मरिक के साथ, उसको किसी व्हाइट क्लॉथ पे थोड़ा सा स्पॉट लगा लो, राइट। देन उसके ऊपर आप अपना वॉशिंग सोप रब कर दो। यू विल सी दैट टर्मरिक इट चेंजेस टू रेड। व्हाई इट चेंजेस टू रेड? क्योंकि वो टर्मरिक था ऑन रिएक्टिंग विद बेस, वॉशिंग पाउडर में बेस होता है, इट चेंजेस टू रेड कलर, राइट। ये आप घर पे कर सकते हो। स्टूडेंट्स, these are China roses. What are these? China roses. You remember हमने 6th में भी इनकी डाइसेक्शन करी थी, इनको हमने करा था कट, इनका ट्रांसफर सेक्शन वगैरह देखा था, पेटल्स, स्टेमन्स। तो ये जो चाइना रोज की पेटल्स हैं, हाँ हिबिस्कस, राइट कृष्णा। तो ये जो चाइना रोज की पेटल्स हैं, इन पेटल्स को हम वार्म वाटर में बॉइल करते हैं, रखते हैं थोड़ी देर, इनका कलर आ जाता है, राइट। इनका जो कलर आता है पिंक कलर, उससे हम फिर टेस्ट करते हैं। दीज आर ऑल्सो इंडिकेटर्स। हियर वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, राइट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हमारा कल इतना नेचुरल हो गया था, अब हमने करने हैं सिंथेटिक, मैन मेड, ह्यूमन मेड इंडिकेटर। फर्स्ट आता है फिनॉल फैथलीन। फिनॉल फैथलीन, क्या नाम है इसका? फिनॉल फैथलीन, राइट। ये फिनॉल फैथलीन डाई है, उसको अल्कोहल में मिक्स करने के बाद ये सोल्यूशन बनता है। एक चीज याद रखना, फिनॉल फैथलीन जो होता है, फिनॉल फैथलीन, इट इज कलरलेस। कलरलेस कैसा होता है ये? इट इज कलरलेस। ये पड़ा है मेरे पास फिनॉल फैथलीन, इसका कोई कलर नहीं है, इट इज कलरलेस, ठीक है। अब फिनॉल फैथलीन का क्या रिएक्शन है? फिनॉल फैथलीन बेसिकली बेसिस के लिए है, ठीक है। कैसे करते हैं हम रिएक्शन? ये आई एम टेकिंग वन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आई एम टेकिंग द फिनॉल फैथलीन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने डाला है इसमें, यू कैन सी दिस इज फिनॉल फैथलीन, दिस आई हैव एडेड इट, राइट। इसमें मैं बेस डालती हूँ, आई एम गोइंग टू एड बेस। दिस आई एम हैविंग dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, उसको टच करते ही चेंजेस टू पिंक। ये बेसिस का बड़ा तकड़ा रिएक्शन देता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इट इज गिविंग, राइट। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ बेसिस, फिनॉल फैथलीन। और एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन है? अगेन आई एम टेकिंग फिनॉल फैथलीन, मैंने ये लिया, फिनॉल फैथलीन मैंने ले लिया, सी दिस इज फिनॉल फैथलीन, राइट। अब मैं इसमें एसिड डाल के देखती हूँ, सी दिस इज आई एम एडिंग एसिड इन इट, नो चेंज इन कलर, देयर इज नो चेंज इन कलर। फिनॉल फैथलीन यानी कि जब हमने व्हेन वी ऐड फिनॉल फैथलीन टू अ बेस, it gives pink color, right? When we add phenol phthalate to a acid, it remains colorless. Even with neutral solution, अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन भी लेते हैं फिनॉल फैथलीन के साथ, it will remain colorless. Is this clear to all? Is this clear? ये एसिड के साथ था हमारा, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट आ गया
मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। हाँ जी बच्चे, मेरे पास मिथाइल ऑरेंज भी है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक्चुअल में मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, राइट, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। अब क्या होता है, हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज आई एम गोइंग टू add in a test tube. This is methyl orange. ये मैंने ऐड किया. Now I am going to add acid in this methyl orange. This is acid. It turns red. ये ऑरेंज से कौन सा कलर हो गया इसका? रेड. सी, रू ऑफ से वाला कलर, रेड कलर. सो मिथाइल ऑरेंज ने एसिडिक मीडियम में क्या किया? इट चेंजेस टू रेड कलर, राइट. लेट अस सी बेसिक में क्या होता है. व्हाट डज इट डू इन बेसिक? ये मैंने टेस्ट ट्यूब ली. आई एम एडिंग मिथाइल ऑरेंज टू इट. ये देखो, मिथाइल ऑरेंज. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बेसिक सोल्यूशन टू इट. सोडियम हाइड्रोक्साइड डालती हूँ. इट बेसिकली टर्न्स टू येलो कलर, राइट. ये येलो कलर आ गया इसका. विच कलर? येलो कलर, राइट. सो दिस was all about indicators. Oh my god. Just a minute. Yes. Let me keep these aside. So, what happened with methyl oranges? अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज इटसेल्फ इसका कलर क्या है? मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर. व्हाट इज द कलर? ऑरेंज कलर, राइट. अपना कलर जो है. बट इफ वी ऐड मिथाइल ऑरेंज टू एसिड, it changes to red color, right. And if we add methyl orange to a base, it will give yellow color, right. Is this clear? Everybody, is this clear? यहां पे हमारे इंडिकेटर्स खत्म हो गए, राइट. नोट कर लो कनव. इसके बाद हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज और डिफरेंस, ये सारे करने हैं, ठीक है. हरी अप, हरी अप. किसमें? न्यूट्रल सोल्यूशन वी डोंट हैव भव्या राइट नाउ, ठीक है. it will not show any change in color, it will remain same. ओके. न्यूट्रल सोल्यूशन आप शुगर सोल्यूशन बना सकते हो घर पे अपने आप. ओके. हाँ जी सात्विक, नोट कर लो. आई एम नॉट रबिंग. देन आई हैव टू स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिड्स. मैं सिर्फ आपको एक
एक चीज थोड़ी सी दिखाना चाहती हूँ। आपके मन में आया कि अगर हम एसिड और बेस दोनों मिक्स कर दें, आया आपके मन में? हम्म, HCl लेके आई मैं। चलिए, आप ये नोट करते रहो, मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ। ये बीकर लिया मैंने, ये मैंने इसमें एसिड डाला, डाइल्यूट HCl, ये देखिए डाइल्यूट HCl। दिस इज डाइल्यूट HCl। अब इसके अंदर मैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालती हूँ, ये है, ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लेट मी ऐड, हाँ जी, ये मैंने एसिड के साथ बेस मिक्स किया है। तो क्या बनेगा? ठीक है, अगर मैं डिल्यूट HCl और डिल्यूट NaOH डालती हूँ तो मेरे पास सॉल्ट आएगा, इसमें से बहुत स्मेल आ रही है, हीट निकल रही है, प्लस वाटर बन जाएगा। सॉल्ट प्लस वाटर, इसको अगर मैं हीट कर दूं तो आई विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। हीट इज इवॉल्व, हीट निकलेगी से, वो हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बाद हमारा टॉपिक वही है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। पर उससे पहले हमने एसिड बेसिस के डिफरेंसेस करने हैं आज। फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, संचित प्लीज टाइप अ मैसेज। शैल आई रेज दिस? शैल आई रेज दिस? चलिए, लेट अस डू द differences between acids and bases. Acids and bases, मैं फटाफट नोट करवाते जाऊंगी, लिखते जाना। यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स क्या होते हैं? किस बेस पे हम डिवीजन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर डिवाइडिंग, पैरामीटर्स। ओके, फर्स्ट पैरामीटर इज टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट क्या होता है? सोर। और बेस का बिटर, राइट। देन टच, अगर हम टच की बात करें, नॉट सोपी, ये सोपी होते हैं, राइट। देन इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे इसका क्या इफेक्ट है एसिड का? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर ऑन द एसिड? ब्लू लिटमस को ये किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और इसका क्या रिएक्शन है? रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, राइट। हो गया इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर पे इफेक्ट क्या है? एसिड, नो इफेक्ट। बेस, येलो टू रेड।
टर्मरिक को टर्न येलो, टर्मरिक पेपर टू रेड, राइट। अब फिनोल्फेथलीन, हमने फिनोल्फेथलीन भी किया था। दे आर डिफरेंट सॉल्ट संचित, डिफरेंट केमिकल्स फॉर डिफरेंट मेडिसिन, राइट। फिनोल्फेथलीन पे क्या होता है, एसिड्स पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, इट टर्न्स पिंक, राइट, पिंक। अब चाइना रोज के साथ, चाइना रोज के साथ क्या होता है, ये हो जाता है मिजेंटा एंड दिस टर्न्स ग्रीन, राइट। सॉल्युबिलिटी, लास्ट आ गया सॉल्युबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट, नॉट ऑल, most of the acids are soluble, most of the bases are insoluble, right। ये कौन है, ओप्पो A54। बच्चे आप अपने नाम के साथ एंटर करो, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क होगी, ओके। हो गया जी। bases, most of the bases are insoluble but some bases are soluble, सुहाना, some bases, for example सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोल्यूबल बेस है ना, सोल्यूबल बेस, जो बेस डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्यूबल है ये। और एक और चीज मैं यहीं पे बता देती हूं, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज, एल्कलीज, राइट डाउन, व्हाट आर एल्कलीज, bases that get dissolved in water, they are known as alkalis, right। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक लाइन और ऐड कर लो, all alkalis are bases but all bases are not alkalis, right। all alkalis are bases but all bases are not alkalis, am I clear to everybody? क्या है, most of the bases are insoluble in water but few, very few, they can be dissolved in water। alkalis के spelling I have written, कोई पूछ रहा था नित्या, ALKALIS, the bases which get dissolved in water, which are soluble in water, they are known as alkalis, right। Is this clear? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो लिखी हुई है मैंने हर्षिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, all alkalis are bases but all bases are not alkalis, right। Is this clear?
Note it down hurriedly. Done. Tomorrow we will be starting neutralization reactions. What we will be starting? Neutralization reactions. क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वो हम कल करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको छोटा सा बता देती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, करके दिखाया था। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, उसके साथ हीट प्रोड्यूस होती है, right? This is neutralization reaction. Yes, Rishita. Any doubt बेटे? हाँ बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? वो बड़ी क्लासेस में है, ये जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, ठीक है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? Okay students, time is over now. We will be meeting tomorrow, right?